A very good morning to all of you. Welcome back. So let's start entropy. The next chapter is entropy. So let us understand what entropy is. And for that, let us consider let us consider a cycle. Say there is the cycle consists of two processes, 1 to 2 through A, and it is returning back to 1 through path P. So let us consider another cycle. Say the returning path for that cycle is through C. So there is the one cycle 1A 2 1A 2 B 1, that is assumed to be the reversible cycle. Reversible cycle. Again another cycle 1A 2 C1, that is also assumed to be reversible cycle. What we have assumed? We have assumed two reversible cycle, the two different reversible cycle. Now applying Clausius inequality. तो Clausius inequality क्या कहता है? Clausius inequality कहता है कि for reversible cycle, the cyclic integral of dq over t is equal to 0. This is for reversible cycle. So what we have assumed, so you can write down here case 1. We are discussing for reversible cycle only. Reversible cycle. First of all, we have considered reversible cycle. So reversible cycle, we know for the reversible cycle dq over t is equal to 0. Now, so there are the two processes in a cycle. There are the two processes. What are those? dq over t. You can give a please mute yourself. Someone has unmuted. So the cyclic integral, see here the dq we always cross it. Why? Because it shows it is path dependent. So 1a2 the process plus dq upon t for process 2b1 will be equal to 0 because 1a2b1 is reversible cycle. Again for the another cycle we can write down dqt for 1a2 plus dq upon t for 2c1. Again it will be 0 because both cycle are reversible. Now if we take difference of these two quantity, this and this, if we can take difference, then it will become how much? It will cancel out, it will also cancel out. What we will get? dq over t for 2b1 minus dq upon t
2c1 is equal to 0. So what we got, dq upon t for 2b1 will be dq upon t for 2c1. So this quantity we got. अगर आप इन दोनों क्वांटिटी का ध्यान दें, देन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम यह ऑब्जर्व करते हैं कि इवन दो द पाथ इज डिफरेंट, क्या है 2b1 एंड 2c1, लेकिन ये जो क्वांटिटी है dq अपॉन t और ये जो क्वांटिटी है dq अपॉन t, दोनों पाथ के लिए सेम है। अगर कोई क्वांटिटी दो पाथ जो कि डिफरेंट है, देखो ये दोनों पाथ हमने डिफरेंट माना है, डिफरेंट पाथ पे भी वो क्वांटिटी अगर सेम है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो क्वांटिटी पाथ से इंडिपेंडेंट है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। चाहे कोई भी पाथ लो, चाहे 2b1 लो या 2c1 लो, 2b1 लो या 2c1 लो, दैट क्वांटिटी इज सेम, दैट क्वांटिटी इज सेम। दैट मीन्स this quantity dq upon t is independent of path, and ये जो क्वांटिटी है वो सिर्फ एंड स्टेट पे पॉइंट पे डिपेंड करेगा। Therefore अगर ये ऐसा क्वांटिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है तो इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी होगा, ये प्रॉपर्टी होता है। एंड इस प्रॉपर्टी को हम लोग एंट्रोपी का नाम देते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या नाम देते हैं? एंट्रोपी। एंट्रोपी, दिस प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज एंट्रोपी, दिस प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज एंट्रोपी। देयरफॉर एंट्रोपी का क्या हुआ डिफिनीशन? एंट्रोपी का डिफिनीशन हमने डिफाइन कर लिया क्या कि डी क्यू अपॉन टी। अब ये किसके केसेस में किए हैं? क्या हमने रिवर्सिबल साइकिल के लिए सिर्फ, या इरिवर्सिबल के लिए, या दोनों के लिए? तो नहीं, ये जो हमने डिफिनीशन लाया है वो सिर्फ रिवर्सिबल साइकिल के केसेस में है। अभी इरिवर्सिबल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सर क्या नहीं दिख रहा है? जो आप स्क्रीन नोटेट कर रहे हैं। हाँ सर। अच्छा, नहीं नहीं, वो हमने अभी लिख नहीं रहे हैं, हम तो बस बोल रहे थे। चलो ठीक है। सो ये जो क्वांटिटी है dq अपॉन टी, dq अपॉन टी, dq अपॉन टी है, वो क्या है? एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ds एंट्रोपी बोलते हैं, विच इज डिफाइंड एज dq अपॉन t, dq अपॉन t। देयरफॉर यह एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमेशा एंट्रोपी डिफाइन करते हैं। ब्लर दिख रहा है सर, ब्लर। अच्छा, ब्लर दिख रहा है, शायद नेटवर्क का कुछ इशू होगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा ब्लर लगता है, दिख रहा होगा, नेटवर्क का इशू के कारण। चलो हम धीरे धीरे लिखेंगे, ब्लर है तो हम स्लो हो जाएंगे, हम बोलते जाएंगे। यहाँ तक लिख लीजिए जरा, देखते हैं। रेड से लिखें तो चलेगा क्या? रेड वाला कलर थोड़ा होगा विजिबल ज्यादा। हाँ, ये ब्लर में भी थोड़ा सा साफ दिख रहा है। चलो ठीक है, वो नेटवर्क का इशू आ जाता है ना, तो शायद उसके कारण हो गया होगा। और तो ब्लर दिखने का कोई रीजन नहीं होना चाहिए, हमारा स्क्रीन पे दिख रहा है अच्छे से। चलो ठीक है, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम एक पैराग्राफ लिखा देंगे। आप यहाँ तक प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद एक पैराग्राफ हम डिफिनीशन लिखा देते हैं। किसका? इसके बाद का। प्लीज नोट डाउन। हम फिर आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद स्टेटमेंट लिखा रहे हैं। दो पाथ्स ए एंड सी आर डिफरेंट, द क्वांटिटी dq upon t
for reversible cycle is independent of path and it depends only on end points and hence dq upon t for reversible must be a property and this property is known as entropy. क्या हो जाएगा? Therefore क्या लिख सकते हैं? ds will be equal to dq upon t for reversible. Please note it down. ब्लर कैसे दिख रहा है? Please note it down. Please note it down. सर जब तक नोट करते हैं तब तक इसको रिपीट करिए सर। ठीक है। सो जो लेट कमर्स आए हैं उनके लिए हम थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देते हैं कि हमने क्या किया है कि हमने एक रिवर्सिबल साइकिल लिया है 1A2B1 1A2B1 और दूसरा साइकिल लिए हैं 1A2C1, मतलब दो रिवर्सिबल साइकिल लिया है और दोनों रिवर्सिबल साइकिल में हम क्लॉसियस इनइक्वालिटी लगा दिए हैं। तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी फॉर रिवर्सिबल साइकिल क्या कहता है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq अपॉन t विल इसेंशियली इक्वल टू 0। हम ये जानते हैं फॉर ए रिवर्सिबल साइकिल क्लॉसियस इनइक्वालिटी। तो ये जो क्लॉसियस इनइक्वालिटी है अगर हम एक साइकिल के लिए लगाना चाहते हैं 1A2B1 के लिए, जो कि दो प्रोसेस का बना हुआ, कौन कौन सा? 1A2 का और 2B1 का। देयरफॉर dq अपॉन t फॉर द प्रोसेस 1A2 और dq upon t for 2B1, both will the summation will be 0। अगेन हम कौन सा प्रोसेस के लिए लगा रहे हैं साइकिल के लिए? 1A2C1 के लिए लगाएंगे। तो दो प्रोसेस हो जाएगा dq upon t 1A2 प्लस dq upon t 2C1। अब दोनों का हम डिफरेंस ले रहे हैं, तो जैसे ही हमने डिफरेंस लिया तो ये 1A2 कॉमन है तो वो क्वांटिटी कैंसिल आउट हो गया है। तो बचा क्या? dq upon t 2B1 minus dq upon t 2C1 is equal to 0। Therefore dq upon t 2B1 is equal to dq upon t 2C1।
यानी इस स्टेटमेंट से हमें क्या सीखने को मिला कि जब रिवर्सिबल साइकिल है तो एक ऐसा क्वांटिटी dq अपॉन t मिला जो पाथ, दो डिफरेंट पाथ के लिए सेम वैल्यू मिल रहा है। इसका यह मतलब है कि यह क्वांटिटी dq अपॉन t पाथ से इंडिपेंडेंट है, यह पाथ पे डिपेंड नहीं करता है क्योंकि हमारा दोनों क्वांटिटी दोनों पाथ के लिए सेम है। देयरफॉर यह एक स्टेट फंक्शन होगा, पॉइंट फंक्शन होगा और यह एक प्रॉपर्टी होगा और इस प्रॉपर्टी को हम लोग एंट्रोपी के नाम से जानते हैं। देयरफॉर एंट्रोपी का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? ds इक्वल टू dq ओवर t। कब? जब प्रोसेस रिवर्सिबल था। अब बताइए, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि ये जो ds इक्वल टू dq अपॉन t है, ये जो हमने डिफाइन किया है वो किसके लिए किया है? ds अपॉन dq अपॉन t, ये जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ये जो हमने डिफाइन किया है ds इक्वल टू dq अपॉन t फॉर, ये क्या है? ये एक प्रोसेस के लिए, 2b1 के लिए या 2c1 के लिए, यानी यह हमेशा जो क्वांटिटी है ds अपॉन dq अपॉन t, यह एक प्रोसेस के लिए डिफाइन किया गया है, यह एक प्रोसेस के लिए डिफाइन किया गया है। एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज the second law of thermodynamics for a process, second law of thermodynamics for a process। this इसको क्या हम लोग बोलते हैं? second law of thermodynamics for a process। जैसे कि ध्यान होगा हमारे पास क्या था, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स साइकिल के लिए लगाया था। क्या हुआ था? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dw। लेकिन यही जब प्रोसेस के लिए आ गया था तो क्या आया था? dq इक्वल टू du प्लस dw। और हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है साइकिल के लिए? जहां से हमें कंसेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन और हीट पंप मिलता है। वो उसमें क्या हो रहा है? हमेशा साइक्लिक की बात करते हैं, साइकिल की बात करते हैं। लेकिन अगर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की बात करेंगे तो हमारे पास ये वाला आएगा कंसेप्ट, ds इक्वल टू dq ओवर t फॉर रिवर्सिबल। सो इसके नीचे आप एक नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस। हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम या तो हम इसको नेक्स्ट पेज हम क्लीन कर रहे हैं, प्लीज नोट इट डाउन। क्या हम लिखेंगे? दिस इज द, क्या हो जाएगा? दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस। सो अगर कोई इंटरव्यू में ये पूछ सकता है ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस, तो खुश नहीं होना है, पहले पूरा आपको समझ लेना है। पता चला आप साइकिल के लिए बोल देंगे तो वो बोलेगा हमने तो प्रोसेस के लिए बोला था, यानी आपका आंसर गलत हो गया है। सो दिस विल बी द, दिस इज अ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस। सो हमने क्या किया था? ये रिवर्सिबल साइकिल का केस लेकर के हमने ये सीखा। सो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम करते हैं अगला केस लेते हैं, केस नंबर 2। केस टू कौन सा? इरिवर्सिबल साइकिल ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं? इरिवर्सिबल साइकिल, इरिवर्सिबल साइकिल। तो उस केसेस के लिए हम क्या करते हैं कि हम साइकिल ले रहे हैं इरिवर्सिबल साइकिल के केसेस में, तो हम एक साइकिल मानते हैं पहला रिवर्सिबल, 1 थ्रू A to a state 2 and returning back to state 1 through path C। ये हो गया कौन सा? हमने कंप्लीट लाइन से डिनोट किया है। Therefore 1 A 2 C 1 will be reversible cycle, will be reversible cycle। अब हम एक इरिवर्सिबल साइकिल ले लेते हैं। हम एक ले लेते हैं कौन सा? इरिवर्सिबल साइकिल। इरिवर्सिबल साइकिल का मतलब क्या हो गया कि उसका कोई भी एक पाथ भी अगर इरिवर्सिबल हो गया, सॉरी ये बी होगा ना, सी क्यों ले लिए, बी मान लेते हैं, इसको हम लोग बी मानते हैं, इसको सी मानेंगे, सीक्वेंस में रखते हैं, इसे हम सी मान लेते हैं थ्रू सी। यानी क्या हो जाएगा? 1 A 2 C 1,
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल साइकिल, इरिवर्सिबल साइकिल। हमने इसको इरिवर्सिबल साइकिल माना। हम ये दोनों हमने दो साइकिल मान लिया है, एक साइकिल रिवर्सिबल और दूसरा इरिवर्सिबल साइकिल। एक्चुअली हम जानना चाहते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इरिवर्सिबिलिटी एंट्रोपी इन द केस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी इरिवर्सिबल साइकिल। सो हम क्या करने जा रहे हैं, हम अगेन क्या लेंगे, अब ब्लर खत्म हो गया कि अभी भी है, ब्लर है तो रेड से चलते हैं। सो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू ओवर टी, हम पहला साइकिल के लिए ले रहे हैं, किसके लिए, जब साइकिल हमारा रिवर्सिबल है, विल बी इक्वल टू 0। सो अगेन हम क्या लिखेंगे, डी क्यू ओवर टी, कब प्रोसेस कौन सा है, 1A2 प्लस डी क्यू ओवर टी 2B1 इक्वल टू 0। अब बताइए इस केसेस में क्या आ जाएगा, डी क्यू ओवर टी फॉर 1A2 विल बी इक्वल टू डी क्यू ओवर टी फॉर 2B1, माइनस आ जाएगा, माइनस भी रहेगा, माइनस ये आ गया। अब हम लेने जा रहे हैं किसके लिए, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ फॉर इरिवर्सिबल के लिए, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू अपॉन टी फॉर इरिवर्सिबल क्या हो जाएगा, फॉर इरिवर्सिबल के लिए दैट बी लेस देन इक्वल टू 0। देयरफॉर अगर इस केसेस में हम लिखना चाहते हैं तो डी क्यू ओवर टी फॉर प्रोसेस 1A2 प्लस डी क्यू ओवर टी फॉर प्रोसेस 2C1 will be less than 0, will be less than 0। अब हम 1A2 के जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देखिए ये इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, dqt हमारा उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, कितना, dq अपॉन t 2B1 प्लस dq ओवर t 2C1 will be equal to 0, sorry less than 0 ना, not equal to 0, less than 0। हमने क्या कर दिया, ये जो क्वांटिटी था इसको रिप्लेस कर दिए इस क्वांटिटी से, इस इक्वेशन से, ये हमें मिल गया। देयरफॉर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि डी क्यू ओवर टी फॉर 2C1 जो कि इरिवर्सिबल पाथ है, 2C1 कौन सा है, ये इरिवर्सिबल पाथ है। इरिवर्सिबल पाथ के केस में एंट्रोपी जो हो रहा है इज लेस देन डी क्यू अपॉन टी फॉर 2B1, और ये इसका डिफिनेशन क्या है, डी क्यू ओवर टी 2B1, ये किसके लिए है, रिवर्सिबल पाथ के लिए। देयरफॉर वी कैन डिफाइन इट एज डी क्यू अपॉन टी 2C1, वी कैन इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या, चेंज इन एंट्रोपी। देखिए इसमें हमने क्रॉस नहीं किया है, क्यों, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, dq में हम क्रॉस कर रहे हैं, क्यों, टू शो दैट इट इज अ पाथ डिपेंडेंट, और जब पाथ इंडिपेंडेंट होता है उसको हम लोग यहाँ पे क्रॉस नहीं करते हैं, यानी ds को हम लोग क्रॉस करके नहीं लिख सकते हैं, ये लिखना गलत होगा, ds को ये से लिखना सही है, dq को ऐसे लिखना गलत है, dq को ऐसे लिखना सही है। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, खासकर इंटरव्यू में आप अगर कोई पेज पे लिखने के लिए बोला जाए तो इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिएगा। तो ये जो 2C1 है हमारा पाथ है वो कौन सा है, इरिवर्सिबल पाथ है, इरिवर्सिबल पाथ है। मतलब हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया है, कि एंट्रोपी ds इज ग्रेटर देन dq अपॉन t, कब, फॉर इरिवर्सिबल irreversible, ds is always greater than dq over t for irreversible। ये क्या हो गया, एंट्रोपी चेंज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमेशा इरिवर्सिबल के केसेस में, वेयरएज अगर हमारे पास अगर रिवर्सिबल की बात करें तो उसमें एंट्रोपी का क्या रिलेशन होता है, dq अपॉन t फॉर
रिवर्सिबल, उसके केसेस में इक्वल होता है, इरिवर्सिबल के केस में अनइक्वल अनइक्वल आया। चलिए यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा आगे हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लिख लिया जाए, प्लीज नोट डाउन। प्लीज नोट इट डाउन। सो हमने इसमें सिंपली उसी के केसेस में हमने लिया है, जैसा हमने पिछले केसेस में लिया था कि हम दो पाथ ले लेंगे इरिवर्सिबल और इरिवर्सिबल केसेस में। तो हमने ये क्या ले लिया, फॉर द इरिवर्सिबल हमने एक इनइक्वालिटी हमें मिल गया है, 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 इनइक्वालिटी हमें मिल गया है। सो हम इसको मिटा रहे हैं। सो अगर हम आपको एक दो पाथ देते हैं, देखिए एक 1 से गया कौन सा, 2 की ओर, और एक गया है 1 से लेकर के, कलर नहीं चेंज करें क्योंकि आपको ब्लर हो रहा है इसलिए, ये हो गया। चलिए ये डायरेक्शन साइकिल बना लेते हैं। सपोज ये रिवर्सिबल है, यही था, और ये क्या था, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ये 1 से 2 गया है। तो बताइए इसका जो एंट्रोपी यहाँ पे होगा वो क्या है, S1 है। यहाँ का एंट्रोपी अगर हम इसको मानते हैं तो S2 है, अगर हम इसको S क्वांटिटी मानते हैं तो उस केसेस में बताइए जो चेंज इन एंट्रोपी हो रहा है व्हेन देयर इज द रिवर्सिबल प्रोसेस, बताइए चेंज इन, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, ये 1 है, ये प्रोसेस 1 हो गया, तो कितना होगा ये S1, या हम ये कह सकते हैं कितना चेंज जो होगा S2 माइनस S1। सिमिलरली अगर हम इसका इरिवर्सिबल पाथ है 2 से लेके 1 तक जब हम वापस आ रहे हैं, तो अगर रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, तो कितना हो रहा है, या इसका डायरेक्शन हम सेम रखते हैं तो आपको और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। हम इसका डायरेक्शन सेम रखते हैं, 1 से 2 ही ले रहे हैं, हम इसका 1 से 2 ही लेते हैं, 1 से हम लोग 2 ही लेते हैं। तो बताइए अगर इरिवर्सिबल है उस केस में भी क्या होगा, चेंज S2 माइनस S1 होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रिवर्सिबल पाथ हो या इरिवर्सिबल पाथ हो, ये सिर्फ एंड स्टेट पे डिपेंड करता है। देयरफॉर अगर चेंज इन एंट्रोपी जो होगा दोनों सेम होगा। दोनों हमने क्या लिया है, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ध्यान दिया जाए, ये चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, सेम होगा, चेंज इन एंट्रोपी सेम होगा, चेंज इन एंट्रोपी सेम होगा। सो हम इसका स्टेटमेंट एक पैराग्राफ आप लिख सकते हैं कि एज, चलिए यहां बगल में लिख देते हैं, एज क्या होगा, एंट्रोपी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। सो एंट्रोपी हमारे पास प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी एंड स्टेट पे डिपेंड करता है। देयरफॉर रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, दोनों के केस में अगर एंट्रोपी हमें इवैल्यूएट करना होगा तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, एंड स्टेट का डिफरेंस निकाल लेंगे, एंड स्टेट का डिफरेंस निकाल लेंगे। अब हमारे पास क्या होगा, सपोज कोई इरिवर्सिबल पाथ है, इरिवर्सिबल पाथ है, तो अब बताइए 1 से लेके 2 तक हमें निकालना होगा इरिवर्सिबिलिटी, एंट्रोपी। तो हम क्या करेंगे, इरिवर्सिबिलिटी के जगह हम मान लेंगे इसे कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, और हम जानते हैं कि जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो ds विल बी इक्वल टू नथिंग बट dq अपॉन t, और इस केसेस में क्या होगा, S2 माइनस S1। देयरफॉर जब भी हमारा इरिवर्सिबिलिटी प्रोसेस होगा तो हम इरिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्लेस कर देंगे रिवर्सिबल प्रोसेस से, और फिर एंट्रोपी को कैलकुलेट कर लेंगे, और वही देगा एंट्रोपी जो चेंज होगा वो इरिवर्सिबल प्रोसेस का एंट्रोपी होगा। सो
हम स्टेटमेंट यहां लिख रहे हैं, एज एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी, its value remain same as long as the endpoints are same. So to find entropy change for an irreversible process, it must be replaced with a reversible path between same end points. हम इसको रिवर्सिबल पाथ से हम लोग कर लेंगे, रिवर्सिबल पाथ से हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, चलिए यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, यहां तक प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। प्लीज नोट इट डाउन। ओके, सो फिर से रिकनेक्ट कीजिए प्लीज, उसके बाद हम नया एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो अभी टाइम चूंकि 4 मिनट से भी कम है, तो थोड़ा हम इसको स्टॉप करके फिर से रिकनेक्ट कीजिए।